Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Introduction to Computing and Programming class. Today we are going to cover lecture 8, which has topics assignment operators, arithmetic operators, and then we're going to talk about C in command, and we'll see different versions of C in command which will have different features, and then finally we're going to talk about constants and mathematical functions. So let's begin with assignment operators. So this equal to sign, which we normally call it as equal to sign, is basically the assignment operator in C++ language, which is normally read as is assigned the value of. That means if we have the expression like this, then this expression is in daily life we read this expression as count is equals to 8, but in C++ we are not going to read this out as count is equals to 8, but we are going to read it as count is assigned the value of 8, which means that whatever the value of this sign has on the right hand side will be assigned to the variable present on the left hand side. Okay, so I repeat again what I have said. This assignment operator is basically does what it does, that whatever the value of whatever the value exists in the right hand side of this assignment operator is automatically assigned to the variable present on the left hand side of this variable of this symbol, that is assignment operator. So this means what? This means that the things present on the left hand and the right hand side of this symbol are not equal, right? Basically they are not equal. That means we cannot write like this 8 is equals to count. If this symbol was is equals to, then yes, we could have written it like this, 8 is equals to count. But since this symbol is not is equals to, this symbol is basically the assignment operator, which only assigns the value present on the right hand side to the variable present on the left hand side, right? So that's why these two expressions are not equal, okay, or are not same. So बेसिकली हमारे पास तो फिर हम लोग इसको किस तरह से रीड करेंगे? इसको हम लोग रीड करेंगे काउंट इज़ असाइंड द वैल्यू ऑफ 8. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग कोई वेरिएबल जो है वो जब हम कोई वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं, लाइक हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया काउंट, ठीक है, एंड काउंट सेमीकोलन, देन इसका मतलब क्या हुआ कि एक मेमोरी लोकेशन में एक जगह जो थी वो रिजर्व्ड हो गई फॉर दिस वेरिएबल काउंट, ठीक है. एंड देन व्हेन वी राइट काउंट इज़ असाइंड द वैल्यू ऑफ 8, तब क्या होगा? तब ये होगा कि जो 8 है होगा भी बाइनरी में कन्वर्ट होकर इस मेमोरी लोकेशन में जहाँ हम लोगों ने क्रिएट की थी काउंट के लिए, इसमें जाकर ये वो नंबर इन बाइनरी फॉर्म स्टोर हो जाएगा. सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ दिस. सो दैट मीन्स कि हमारे पास हमेशा इस साइड पे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस असाइनमेंट ऑपरेटर देयर शुड ऑलवेज बी अ वेरिएबल, ठीक है. यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिक नंबर नहीं हो सकता, अलबत्ता इस साइड पर राइट हैंड साइड पर कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई दूसरा एक्सप्रेशन भी हो सकता है, और एक न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है. कैसे? इसके हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं. सो दीज वी हैव डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ दिस असाइनमेंट ऑपरेटर. फर्स्ट यू कैन सी हियर इंट काउंट, यानी कि यहाँ पर इस स्टेप पे हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर हम लोगों ने एक वेरिएबल काउंट के नाम से, जिसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, उसको डिफाइन कर दिया, ठीक है. एंड इन द नेक्स्ट स्टेप देयर इज़ अनदर वेरिएबल टोटल, और उसकी डेटा टाइप भी इंटीजर है, उसको भी हम लोगों ने डिफाइन कर दिया. फिर इन द थर्ड स्टेप व्हाट वी हैव डन इज दैट सिंपल उस वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने 10 की वैल्यू रख दी है. सो हियर इज़ अ डेफिनेशन, 10 इज़ अ लिटरल दैट इज प्लेस्ड इन द मेमोरी लोकेशन कॉल्ड टोटल, ठीक है. सो 10 एक वैल्यू है, एक कोई भी न्यूमेरिक नंबर है जिसको हमने असाइन कर दिया है एक वेरिएबल जिसका नाम टोटल है, ठीक है. यानी कि जब टोटल मेमोरी लोकेशन जिसका नाम टोटल होगा
उसके अंदर 10 की वैल्यू लिख दी जाएगी. सो अगर हम लोग जो है वो 10 इज असाइन द वैल्यू ऑफ टोटल लिखते हैं, सो दैट एक्सप्रेशन वुड बी रॉन्ग. क्यों? क्योंकि 10 जो था वो कोई मेमोरी लोकेशन नहीं थी. सो 10 वॉज इटसेल्फ अ नंबर. सही है. अब उस नंबर को हम लोग कोई वैल्यू और नहीं दे सकते. ठीक है. हम लोग वैल्यू जो है वो एक मेमोरी लोकेशन में ही स्टोर करवा सकते हैं. सो टोटल वॉज अ मेमोरी लोकेशन. ठीक है. जहाँ पर हम लोगों ने ये वैल्यू जो थी वो रख दी. बट हमेशा हम लोग जो है वो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर राइट हैंड साइड पर कोई वैल्यू ही लिखी हुई हो. राइट हैंड साइड पर कोई एक्सप्रेशन भी लिखा जा सकता है. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पर एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 3+4, यानी कि एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एक्सप्रेशन है 3+4. तो कंप्यूटर क्या करेगा C++ लैंग्वेज में, कंप्यूटर ये करेगा कि पहले 3+4 करेगा, यानी कि राइट हैंड साइड को प्रोसेस करेगा. ठीक है. प्रोसेस करने के बाद एक वैल्यू तक, जब तक वो नहीं आ जाता तब तक वो उसको प्रोसेस करेगा. तो 3+4 वैल्यू 7 पर आया. नाउ द 7 विल बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म एंड देन विल बी स्टोर्ड इन काउंट लोकेशन. एक मेमोरी लोकेशन काउंट की भी हम लोगों ने यहाँ पर जनरेट की हुई थी, तो वो यहाँ पर हमारे पास काउंट की मेमोरी लोकेशन में 7 को स्टोर कर देगा. ठीक है. इसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस असाइनमेंट ऑपरेटर देयर शुड ऑलवेज बी सम न्यूमेरिक नंबर और एक्सप्रेशन. नो, इट इज़ डेफिनेटली नॉट कंपल्सरी पार्ट. ठीक है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल भी हो सकता है. एंड एज वी नो, इफ दैट वेरिएबल ऑलरेडी हैज सम वैल्यू स्टोर्ड इन इट, देन दैट वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है. इसकी एग्जांपल हम यहाँ पर शो करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वैल्यू लेती हूँ इंट a, b, यानी कि मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने दो वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए a एंड b, जिनकी डाटा टाइप जो थी वो इंटीजर थी. देन व्हाट आई हैव डन इज b इज असाइंड द वैल्यू ऑफ 8. ठीक है. अब मैंने क्या किया, b को मैंने एक वैल्यू दे दी 8. सही है. फिर मैंने क्या लिखा, a इज असाइंड द वैल्यू ऑफ b. ठीक है. सो अब क्या होगा, बेसिकली फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर मेमोरी लोकेशन बनेगी. ठीक है. यहाँ पर मेमोरी लोकेशन दो बनेंगी, एक का नाम a होगा और एक का नाम b होगा. ठीक है. सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई हैव डन इज, मैंने क्या किया है कि b इज असाइंड द वैल्यू ऑफ 8. सो 8 विल बी स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन b. Okay, and then what I have said is a is assigned the value of b. So it will look for the value of the variable b. So variable b had value 8 in it. ठीक है. तो अब जो 8 जो वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल a में आ जाएगी. So if I don't write 8 over here, if I write some other variable, because 8 and a sounds same kind of, so that's why I write 5. So what happens now, 5 is assigned the value, b is assigned the value of 5. ठीक है. b के अंदर 5 चला जाएगा, स्टोर हो जाएगा. एंड देन since a is assigned the value of b, so the value of b is 5, so 5 will be stored in a. So that means what I have shown is that it is not necessary that the left side or sorry, the right side of this assignment operator always have the numeric value. It can also has the value some kind of other variables. ठीक है. For example, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ b plus a. So अब क्या होगा अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, तो अब ये होगा कि पहले ये जब ये असाइनमेंट ऑपरेटर आता है तब सबसे पहले ये क्या करता है, सबसे पहले ये राइट साइड को फुली प्रोसेस करता है. ठीक है. राइट साइड को प्रोसेस करते हैं जब तक उसके पास कोई एक वैल्यू ना आ जाए. सो राइट साइड ऑफ दिस असाइनमेंट ऑपरेटर इज ऑलरेडी एन एक्सप्रेशन. सो दिस एक्सप्रेशन विल बी सॉल्व्ड. सो इफ यू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, इट इज सेड दैट a is assigned the value of b plus a. So b की वैल्यू जो है वो 5 है. ठीक है. प्लस a. लेकिन इस स्टेप पर a की वैल्यू इनिशियली कोई भी जो थी वो नहीं रखी गई थी, यानी कि a was having the garbage value inside of it. ठीक है. जब a के पास कोई garbage यानी कि कोई वैल्यू थी, तो ये एक्सप्रेशन जो होगा कोई भी हमें रैंडम वैल्यू दे देगा, यानी कि वो वैल्यू जो हमें डिजायर्ड भी नहीं होगी वो हमें वैल्यू दे देगा. सो दिस इज काइंड ऑफ अ यू कैन से द एरर.
ठीक है, ये हमारे पास एक काइंड ऑफ लॉजिकल एरर आएगा जो हम लोगों ने इसके साथ परफॉर्म किया है। ये लॉजिकल एरर क्या है कि हम लोगों ने ए की वैल्यू असाइन की हुई नहीं थी पहले से और हम लोगों ने एक्सप्रेशन में डाल दिया। ठीक है, सो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम ए के अंदर भी ऑलरेडी पहले कोई वैल्यू दे दें इसको। ए इज असाइंड द वैल्यू ऑफ लेट्स से 3 और नॉट 3 नहीं 2। ठीक है, so now this expression will give us the correct value, whatever correct value or the desired value, right? So अब a मेमोरी लोकेशन में भी 5 आ गया, और सॉरी a मेमोरी लोकेशन में 2 आ गया, b मेमोरी लोकेशन में 5 आ गया. Now this expression will give us the desired value, whatever it is desired. So a is assigned the value of b plus a, so b 5, ठीक है, plus a was 8, 5 plus 2 7, so 7 will be the answer, right? So if I run it, okay, so now you can see that we do not get to see any of the thing displayed on our screen. Why? Because मैंने इसने प्रोसेस तो कर लिया, a में 7 भी स्टोर हो गया होगा, लेकिन मैंने उसको डिस्प्ले नहीं करवाया. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि पता नहीं क्यों रिजल्ट तो नहीं आ रहा, हम लोगों ने तो सारा काम किया है, स्क्रीन पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, ब्लैंक स्क्रीन नज़र आ रही है. तो द आंसर इज़ कि हमारे पास हम लोगों ने उसको डिस्प्ले नहीं किया होता, प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लिया होता है. सो फॉर डिस्प्ले वील राइट वील राइट ए. ठीक है, यहाँ पर ये ए को डिस्प्ले कर देगा. ठीक है, तो ये आप देखें कि ये इस तरह से ये डिस्प्ले हो गया है 7. ओके, नाउ so let's get back to the example again. So now you can see there is an example that total is assigned the value of total plus count. So total was already having the value 10 plus count was already having the value 7. So 10 plus 7 is 10 plus 7 17. So now 17 will be assigned to the memory location total. ठीक है, so it is completely correct to write an expression like this. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि मतलब ये गलत नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल हम लोग अगर मैथमेटिक्स करते हैं तो उसमें हम लोग यही करते हैं कि जो दो वेरिएबल्स एक साथ आ जाए तो हम लोग तो कैंसिल कर देते हैं, सिर्फ काउंट बच जाता है, कुछ इस तरह से हम लोग काम करते हैं. लेकिन ये क्योंकि ये सिंबल is not actually the equal to symbol in our C++ language, so this expression is correct. So again I repeat the process of what it does when some expression something like this appears to the C++ language. So what it does is it first calculate or it first process the things present on the right hand side of this operator. ठीक है, whatever the expression present on the right hand side of this operator, it will first process it and then it will get to have some value, and then that value will be stored in the variable present on the left hand side. So it should be remembered again that the left hand side should not the left hand side of this assignment operator should not have any kind of a numeric value. ठीक है, it should have some kind of a variable or a constant. In other words, we call it as identifier. ठीक है, it should have some memory location variable or constant or identifier. It should have, and it should not have some numeric value or some expression. So left hand side पर कोई भी expression या कोई भी numeric value नहीं होनी चाहिए. Left hand side पर हमेशा एक कोई ना कोई variable होना चाहिए. ठीक है, so this was about the assignment operator. Okay, it's very simple, but it's just at the understanding that it is not the equal to, it is basically assignment operator. Okay, so whenever we write it like this, we call it as count is assigned the value of. ठीक है, so it is written as assigned the value of. So next we go to arithmetic operators. Arithmetic operators are really easy and very much similar to like the normal arithmetic operators we use in our daily life. So addition, for addition we use this symbol plus, for subtraction we use minus symbol, for multiplication we use asterisk symbol, for division we use sash symbol, and for modulus we use percent symbol.
So now you would be confusing what is the modulus sign. Division is understandable, but what is modulus? So basically, when we do division, we get to have two things. When we do division in a whole number form, we get to have two things. One thing is the quotient and the other thing is the remainder. ठीक है, जब हम लोग होल नंबर की फॉर्म में डिविजन कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें जो है वो एज अ रिजल्ट आती हैं. एक होता है हमारे पास क्वोशंट, ठीक है, और एक होता है हमारे पास रिमाइंडर. सही है. तो अगर इफ़ यू वांट टू हैव द क्वोशंट ओनली, ठीक है, अगर हमें सिर्फ क्वोशंट चाहिए, अगर हम सिर्फ इंटीजर डिविजन कर रहे हैं एंड वी वांट टू हैव ओनली क्वोशंट, ठीक है, तो देन वी आर गोइंग टू यूज दिस स्लैश साइन. ठीक है. एंड इफ यू आर वर्किंग विद and if we want to have a remainder of any calculation, we want to get that what could be the possible remainder of this division, then we are going to use this percent symbol. ठीक है. And this only happens when we are working with integer division. ठीक है. जैसे हम लोग नॉर्मल अपनी लाइफ में हम लोग होल नंबर की फॉर्म में डिविजन कर रहे होते हैं तो हमें पता है कि हम लोग होल नंबर को किस तरह से लिखते हैं. हम लोग एक साइड पर लिखते हैं होल नंबर और फिर न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होता है. ठीक है. तो ये हमारी होल नंबर डिविजन होती है. इसी तरह से यहाँ पर जब हम लोग इंटीजर डिविजन कर रहे होते हैं देन वी हैव द क्वोशंट एज वेल एज द रिमाइंडर. ठीक है. यहाँ पर से क्वोशंट होना चाहिए और हमारे पास एक रिमाइंडर आना चाहिए. इफ़ यू वांट टू हैव द क्वोशंट ओनली then we are going to use the slash sign, division sign, and if you want to have the modulus only, the remainder only, then we are going to use this modulus sign. ठीक है. लेकिन अगर हम लोग की इंटीजर डिवीजन नहीं हो रही, हम लोग की फ्लोट यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन हो रही है या फिर डबल डिवीजन हो रही है, फ्लोटिंग पॉइंट या डेसिमल पॉइंट डिवीजन हो रही है, तब हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो कुछ भी नहीं होता. ठीक है. ज़ीरो होता है. एंड क्वोशंट हैज़ द all of the things over there. Let me show it to you with an example. जैसे हमारे पास for example if I write b divided by b divided by a. So now we know b is saved as 5 and a has 2. ठीक है. That means what will happen in this step, basically 5 will be divided by 2. And since we know that a and b are both integers, that means normally हम जब 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2.5 आता है. ठीक है. लेकिन अगर हम सिर्फ होल नंबर डिविजन कर रहे होते हैं तो हमारे पास 2.5 आंसर नहीं आता. हमारे पास आंसर क्या आता है, हमारे पास 2 एंड देन 2 एज अ होल नंबर क्वोशंट में आता है और रिमाइंडर में हमारे पास 1 आता है. ठीक है. तो हम लोग जो है वो देखते हैं कि अब हम लोगों ने, क्योंकि ये स्लैश का साइन यहाँ पर रखा है, यानी कि स्लैश मीन्स डिवीजन का साइन यहाँ पर रखा हुआ है, तो डैट मीन्स यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट आएगा सी आउट में वो सिर्फ क्वोशंट आएगा. और इन दिस सिनेरियो व्हाट इज द क्वोशंट? क्वोशंट इज बेसिकली 2. ठीक है. हमारे पास 2 जो है वो क्वोशंट है और रिमाइंडर क्या है हमारे पास? रिमाइंडर है हमारे पास 1. ठीक है. सो लेट्स सी इफ वी गेट 2.5 और 2. ठीक है. ये देखें हमारे पास अब ये देखिए आंसर में 2 आया है. 2 क्यों आया है? क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स थे, यानी कि होल नंबर डिविजन. नॉर्मल लैंग्वेज वी कॉल इट एज होल नंबर, बट इन C++ लैंग्वेज वी कॉल इट एज इंटीजर. सो बेसिकली दिस इज एन इंटीजर डिविजन. इंटीजर इज डिवाइडेड बाय इंटीजर, सो द आंसर इज ऑल्सो इंटीजर. ठीक है. आंसर भी हमारे पास इंटीजर में ही आया है. सो इंटीजर में क्या था? इंटीजर में सिर्फ क्वोशंट था. अगर हमें पता करना है कि भाई इसका रिमाइंडर क्या था, यानी कि जब होल नंबर में हम बात करें तो रिमाइंडर भी कुछ ना कुछ बचता है. ठीक है. तो रिमाइंडर क्या है? तो रिमाइंडर के लिए हम लोग क्या करेंगे? रिमाइंडर के लिए हम लोग एक और वेरिएबल ले लेते हैं. सी इज असाइन द वैल्यू ऑफ b परसेंट a. ठीक है. सो यहाँ पर हम c को भी जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं c. ठीक है. सो जस्ट okay, so this is giving me error. Let's see what is this kind of error is. I think this, okay, so this semicolon was missing. Okay, so I just displayed a but not c. So let me just see out endl for the
proper presentation, and then C out C. Okay, ठीक है. So now let's see. Okay. So now you can see that we have 2, A has 2 and C has 1 inside of it. ठीक है. A जो था वो हमें क्वेश्चन बता रहा था और C जो था वो हमें दिस था एंड चूज द रिमाइंडर वैल्यू. ठीक है. लेकिन इंस्टेड ऑफ इट इफ वी डू द फ्लोटिंग पॉइंट डिविजन, यानी कि अगर हम यहाँ पर इंट को हटाकर इसको यहाँ पर फ्लोट लिखते हैं, ठीक है, then what will happen? Then let's see. Then A should show the whole value like 2.5 because this is not no more an integer division. So I just run it. Okay, so yes, now since this is a whole number this is not a whole number or integer division anymore, so this this modulus sign should not exist. This would give us the error. ठीक है. So like this, invalid operands of types float, यानी कि ये float type operands के लिए ये वैलिड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप ऑपरेंड्स के लिए वेरिएबल है, क्योंकि हमें पता है कि जब फ्लोटिंग पॉइंट या डेसिमल पॉइंट हम लोग डिवीजन कर रहे होते हैं तो देन देयर इज नो रिमाइंडर लेफ्ट. ठीक है, हम सारी चीज़ें क्वोशिएंट पे ही आ जाती हैं पॉइंट के बाद. सो आई विल जस्ट रिमूव इट एंड देन ऑफ कोर्स रिमूव इट एज वेल. Okay, so now this is showing me as 2.5 value. So now I think it should be clear to you. Okay, so this is the thing. Okay, now let's have another example of it written over here. 9 divided by 9 divided by 2 will give answer 4 if it is the integer division, not 4.5. Okay, so 4 is the quotient and 1 will be the remainder. So 9 divided by 2 gives 4, while 9% 2 will give 1. Okay, so this is the explanation. Okay, so these are the examples of arithmetic operators, different arithmetic operators. I think this is really simple. Sum is assigned the value of 21 plus 3. Okay, number is assigned the value of 3. Result is assigned the value of x, यानी कि हमारे पास ज़रूरी नहीं है, x भी हो सकता है. ठीक है, so these are all the mathematical और arithmetic operations. ठीक है, ये सारे arithmetic operators की ये examples हैं हमारे पास. 22 multiplied by number, result is assigned the value of a plus b plus c, area is assigned the value of 3.14 multiplied by POW into radius commas 2. अच्छा, मैंने अभी इसको explain नहीं किया है. I will explain it to you further in this lecture. ठीक है. So after this we have let's talk about cin command. cin command हम लोगों ने ऑलरेडी इसकी बात की हुई है. जैसे हमारे पास सी आउट कमांड होती है और इस तरह से हमारे पास एक होती है सी इन कमांड. सी आउट कमांड बेसिकली हमारे पास क्या करती है कि वट एवर द थिंग्स स्टोर्ड और वट एवर द यूजर से इट शुड डिस्प्ले इट ऑन द इट शुड बी डिस्प्लेड ऑन द कंसोल विंडो. ठीक है, कंसोल विंडो हमारे पास ये जो ब्लैक विंडो होती है, हमारे पास जो ब्लैक होती है, ये हमारे पास कंसोल विंडो या फिर आउटपुट विंडो कहती है. दिस इज द विंडो दैट इज शोन to the user. ठीक है, as a programmer we can see both of the windows, like the programming part as well as the output window, but the user only sees the output window. So सी आउट कमांड क्या करती है? सी आउट कमांड ये कहती है कि जो भी प्रोग्रामर उससे कहता है उसको वो डिस्प्ले कर देती है यूज़र के लिए. ठीक है, जैसे हम लोगों ने इन द लास्ट एग्जांपल हम लोगों ने किया था ए इज असाइन द वैल्यू ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए करके हम लोगों ने उसको सी आउट करवा दिया था. सी आउट मीन्स इट शुड बी शोन टू द यूज़र. ठीक है, अदरवाइज इफ इट इज़ नॉट शोन टू द यूज़र देन इट विल बी ऑफ नो यूज़. ठीक है, क्योंकि यूज़र को आंसर दिखाना ज़रूरी होता है. यूज़र कैन नॉट सी द वाइट स्क्रीन, दैट इज द स्क्रीन ऑन विच यू डू द प्रोग्रामिंग. ठीक है, देन वी हैव सी इन कमांड. सी इन कमांड क्या करती है? सी इन कमांड बेसिकली टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड स्टोर इट इन सम मेमोरी लोकेशन इनसाइड ऑफ अ कंप्यूटर. ठीक है, यूज़र से वो इनपुट लेती है और उसको कहीं पर स्टोर कर देती है जहाँ भी मेमोरी लोकेशन उसकी डिफाइन की गई हो. ठीक है, सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल. पहले इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं. सो दिस इज एन सो बेसिकली दिस इज एन एग्जाम्पल.
of a program, that is calculating. This program calculates the area of a rectangle. ठीक है, ये एक प्रोग्राम है जो कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल को जो है वो हमारे पास कैलकुलेट करके दिखा रहा है. हैव okay, so let me just type this example and show it to you. So basically हमें एक प्रोग्राम बनाना है ऐसा जो कि एक रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करके हमें यूज़र को दिखाना है. ठीक है, यूज़र से वो इनपुट ले और रेक्टेंगल का एरिया यूज़र से लेंथ एंड ब्रेथ जो है वो लेंथ एंड ब्रेथ यूज़र से वो ले और फिर रेक्टेंगल का एरिया जो है वो यूज़र से कैलकुलेट करके यूज़र को दिखाए. सो हमें क्या करना है, हमें यूज़र से 2 इनपुट्स लेने हैं. इसका मतलब है 2 इनपुट्स कौन कौन से होंगे, एक लेंथ होगी और एक विड्थ होगी. सो द फर्स्ट स्टेप शुड बी द declaration or defining the variables, that is length and width. Okay, so I'll define since length and width of a rectangle can be decimal numbers as well. So what I will do is I will just take float as a variable. Float is a sign, float type define कर दी और length and width को length, ठीक है, comma width, ठीक है, सेमीकोलन. सो नाउ द सेकंड स्टेप शुड बी, अब मुझे यूज़र से इनकी वैल्यूज़ जो है वो यूज़र से इनपुट करवानी है. सो दिस इज सी इन. सो नाउ यू कैन सी दैट these 2 operators. Okay, let me first type. Okay, so now let me explain what is happening. सो बेसिकली मुझे यूज़र से 2 इनपुट्स लेने थे, एक लेंथ और एक विड्थ. नाउ ऑफ कोर्स जब यूज़र इनपुट देगा तो सी इन कमांड का हम सी इन कमांड यूज़ करेंगे. एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सी इन कमांड? सी इन कमांड बेसिकली टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड देन स्टोर इट इन सम मेमोरी लोकेशन इनसाइड ऑफ अ कंप्यूटर. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो कि सी इन कमांड से हम जो भी यूज़र से इनपुट लेंगे उसको किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर होना लाजमी है. अब इसका मतलब क्या है कि हम सिर्फ सी एन कमांड नहीं लिख सकते, हम सी एन कमांड के बाद कोई वेरिएबल कोई वेरिएबल लिखना हमें ज़रूरी है, ताकि हमें कोई एक मेमोरी लोकेशन का कोई वेरिएबल लिखना ज़रूरी है ताकि जो भी यूज़र इनपुट दे वो यहाँ पर स्टोर हो जाए. ठीक है, सो बेसिकली सी एन कमांड टेक्स, ठीक है, समथिंग फ्रॉम द यूज़र एंड देन स्टोर इट इन द मेमोरी लोकेशन विद दिस नेम लेंथ. सही है. So this arrows shows the direction of the data flow. Data flows something coming from here and then will be stored in this length. ठीक है, तो ये इन सिम्बल्स को हम लोग एक तरह से ये इशारा समझ सकते हैं कि डायरेक्शन शो कर रहे हैं हमें डेटा फ्लो की, कि हमारे पास जो भी डाटा आएगा वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा. दिट इज अ डेटा फ्लो सिंबल. सिमिलरली इफ आई राइट सी आउट कमांड बिफोर इट, तो सी आउट कमांड के बाद हमारे पास जो ये सिम्बल्स आते हैं इनकी डायरेक्शन जो होती है वो इस तरफ होती है, यानी कि वट एवर इज रिटन ओवर हियर. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट एंटर लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, so whatever is written over here will go out to the screen. ठीक है, will be see outed. तो यहाँ पर हम डायरेक्शन ऑफ द डेटा फ्लो इज सम हेयर फ्रॉम हेयर टू हेयर. ठीक है, तो अब हमारे पास इन ऑपरेटर्स का एक नाम भी होता है. ये जो ऑपरेटर्स हमें शो हो रहे हैं इनका एक नाम भी होता है. सो द नेम ऑफ द ऑपरेटर आफ्टर सी आउट इज कॉल्ड एज इंसर्शन ऑपरेटर and the name of the operator after cin is called as extraction operator. Let me write it over here like this is these operators are called insertion operator. ठीक है, ये ऑपरेटर हमारे पास इंसर्शन ऑपरेटर कहलाते हैं. And these operators are called as extraction operators. ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहलाते हैं. अब ये इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है कि दिस इंसर्शन operators insert whatever written over here onto this console window. It is insert the value whatever written out. इसके बाद जो भी कुछ होगा यहाँ पर उसको वो इंसर्ट कर देगा ऑन द
कंसोल एप्लीकेशन और दिस ब्लैक स्क्रीन, ठीक है. एंड दिस एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, इट एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम द यूजर एंड देन प्लेस इट इन दिस हेयर. डेटा को यहाँ पर फ्लो करवा देगा. इट विल एक्सट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम द यूजर एंड देन विल स्टोर इट ओवर हियर, ठीक है. सो एक्सट्रैक्ट मीन्स टू एक्सट्रैक्ट द डेटा and insert mean to insert something on the console window. That is why it is called insertion and this is called as extraction operator, ठीक है. तो ये हमारे पास एक हम लोग एग्जाम्पल पे इसकी बात कर रहे थे कि हमारे पास ये एक एग्जाम्पल थी CN, मतलब यानी कि हम लोगों ने पहले क्या किया, हम लोगों ने पहले यूजर्स को डिस्प्ले करवाई एक स्टेटमेंट that was saying to enter the length of a rectangle, and then another then we were taking then it was waiting for the input to be taken from the user and will be stored in the variable location, memory location length, and then we have to take another ठीक है. अब हमें एक और जो है वो लिखना पड़ेगा, दैट इज सी आउट enter width of rectangle and then cn width, and then it will calculate the area. So area is assign the value of length into width, ठीक है. अब नाउ also I have to define this area, क्योंकि area जो है वो मुझे नहीं, इसको डिफाइन नहीं है मेमोरी लोकेशन में. सो आई विल ऑल्सो डिफाइन एरिया, ठीक है. एंड देन विल डिस्प्ले द एरिया. ओके, सो लेट्स रन दिस. Okay, so now you can see, let me show you with this. Okay, so in the first line of the program it was saying float, length, width and area. Three variables were defined, length, width and area. Okay, and then the statement was displayed that called enter the length of a rectangle. So the statement is enter the length of rectangle. Then cn, so to extract something from the user and then store it over here, length. So that means what, it will now wait for the user to enter some data. So now the user is shown the statement that the user has to enter the length. So let me just type some length. Okay, then again a statement was displayed, enter the width of the rectangle, and then it is waiting for the for some input, ठीक है. मैंने किसी input का वेट कर, मैंने input दे दिया, and then 40.8 is the answer. So area is shown as 40.8, ठीक है. सो इस तरह से हमारा ये काम हो गया. अब मुझे कुछ एडिशनल चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करनी है. वो ये कि यहाँ पे देखें वी हैड टू ऑप्शंस, कि हम लोगों ने क्या किया कि एक ही इंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने तीनों वेरिएबल्स जो है वो डिफाइन कर दिए. नॉर्मली जब शुरू में बताया जाता है तो हम लोग फ्लोट, लेंथ, फ्लोट, विड्थ, फ्लोट, एरिया अलग अलग करते हैं. बट ये ऑफकोर्स but yes, of course you can define all of the variables in a single instruction of having the same type, ठीक है. सेम टाइप के जितने भी वेरिएबल्स होंगे हम उनको एक ही इंस्ट्रक्शन में भी डिक्लेयर करवा सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ किया हुआ है. बट एवरी वेरिएबल शुड बी सेपरेटेड बाय दिस कॉमा, ठीक है. कॉमा से सेपरेट किए हुए होने चाहिए, ठीक है. तो इस तरह से हम लोग एक ही जो है वो इंस्ट्रक्शन में डिफरेंट मल्टीपल वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है. और इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे हम नॉर्मली करते हैं, जैसे फ्लोट, कुछ और कर लेते हैं, फ्लोट ए, ठीक है. इस तरह से फ्लोट बी. सो वी हैव दिस two options. Either you want to define all of the similar data type variables in a single instruction, or we can have multiple instructions. It doesn't matter, it's all the same. Then what you have seen is that हमारे पास cn की कमांड से पहले मैंने एक स्टेटमेंट जो है वो ज़रूर शो की हुई है. यहाँ पर आप देखें कि हर cn की कमांड से पहले एक सी आउट की स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्ले हुई है.
नाउ दिस ऑल्दो दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड, ये एक कंपल्सरी स्टेप नहीं था, क्योंकि मुझे सिर्फ यूज़र से दो चीज़ें चाहिए थी, एक लेंथ और एक विड्थ, और उसका मुझे एरिया कैलकुलेट करके शो कर देना था। अगर मुझे किसी ने मतलब अगर मुझे कहा गया है कि एक आप प्रोग्राम बनाएं जो कि यूज़र से दो चीज़ें ले, लेंथ एंड विड्थ, एंड देन इट शुड कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड डिस्प्ले इट टू द यूज़र। सो दीज स्टेप्स वर नॉट कंपल्सरी पार्ट। ये जो स्टेप्स मैंने यहाँ पर किए हैं, सी आउट, एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, सी आउट, एंटर द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, these two things were not compulsory but I have written it। क्यों मैंने ये लिखा? मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये चीज़ एक प्रोग्राम को यूज़र फ्रेंडली बना देती है। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस मीन कि हाँ बस यूज़र फ्रेंडली होने का क्या मतलब है? इसकी मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं जो हूँ वो यहाँ पर ये हटा देती हूँ, ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, लेट्स से इन स्टेटमेंट्स दीज वर नॉट कंपल्सरी। इसके बावजूद भी मेरा प्रोग्राम सही चल जाएगा और सही से कैलकुलेट करके दे देगा। सो इफ आई सी दिस 6.86 लिया था मैंने यहाँ पर, लेट्स सी, ओके, सो लेट मी रन इट अगेन विद दिस। Okay, so now it is not showing me anything, but it is still waiting. The program is not ended, program is still waiting। ठीक है, अभी ये देखिए मैंने क्या किया था, सी आउट की स्टेटमेंट्स को कमेंट आउट कर दिया था और सिर्फ यहाँ पर क्या बची है, ये डिफाइनिंग ऑफ द वेरिएबल्स एंड देन सी एन लेंथ। दैट मीन्स अब बीइंग अ यूजर आई विल ओनली बी डिस्प्लेड दिस। ठीक है, आई विल बी ओनली शोन दिस। मुझे सिर्फ बीइंग अ यूजर, अगर मैं प्रोग्रामर नहीं हूँ, अगर मैं यूजर हूँ, ठीक है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये नज़र आएंगी। अब नाउ दिस ऑल्दो फॉर एग्जांपल मुझे पहले से नहीं पता कि ये मेरा जो प्रोग्राम है, ये जो स्क्रीन है, ये मुझसे क्या इनपुट लेना चाह रही है। सो टू मेक इट, यानी कि अभी यूज़र को ये समझ नहीं आ रहा, तो यूज़र क्या करेगा? मे बी यूज़र विल बी कन्फ्यूज, और मे बी यूज़र को किसी ने पहले से बताया हुआ होगा कि ठीक है इस मशीन पे ये वाला काम होता है तो आपको ये वाला काम पहले से करना है। तो यूज़र को अपना मैनुअल खोलना पड़ेगा इस मशीन के लिए कि अच्छा ये यूज़र जो फर्स्ट वेट कर रहा होता है वो एक इनपुट के लिए वेट कर रहा होता है जो कि एक डेसिमल पॉइंट नंबर वैल्यू होती है। तो फिर यूज़र जो है वो अपनी वैल्यू टाइप करेगा 6.8, एंटर प्रेस करेगा, अब फिर से वेट कर रहा है, क्या वेट कर रहा है, क्या चाहिए, ओके वेट चाहिए, पहले कोई बताया किसी ने होगा तो फिर वो टाइप कर देगा, and then this. So now you can see that this program has also calculated the area of the rectangle correctly as of the previous program, but this program is not user friendly at all। क्यों? क्योंकि यूज़र को नहीं पता कि ये जो भी वेट कर रहा है वो क्या इनपुट चाहिए इसको। यानी कि अगर आप कोई मशीन देखें, मशीन हमें कौन सी अच्छी लगती है? वो मशीन जिसमें हर चीज़ क्लियरली हमें उसके जो फ्रंट पैनल होता है उस मशीन का, उस पर क्लियरली इंस्ट्रक्शंस जो है वो लिखी हुई हो कि यहाँ पर आपको ये बटन प्रेस करना है, फिर ये करें, फिर ये करें। वो मशीन आसान होती है, या फिर वो मशीन जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता और फिर हमें उसका जो मैनुअल बुकलेट आती है वो बुकलेट खोलनी पड़ती है और उसको देखना पड़ता है कि अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, अच्छा फिर हम समझ में आता है। सो हमें कौन सी मशीन आसान लगती है? जिसको हमें बुकलेट ना खोलनी पड़े, उसके फ्रंट पैनल पे ही सब कुछ लिखा हो, सही, तो हमें वो चीज़ आसान लगती है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं ATM मशीन में जाऊँ, अब मैं नई नहीं हूँ, मैं तब मैंने अकाउंट खोला, नया नया बस पैसे आए और सब कुछ मैंने ATM जो है वो नया नया यूज़ करना स्टार्ट किया। अब ATM मशीन में मुझसे कहा हुआ ही नहीं है, कोई एक पुराने ज़माने की ATM मशीन है, उसमें कहा हुआ ही नहीं है कि इंसर्ट द कार्ड हियर। अब मैं वेट कर रही हूँ, मतलब क्या करना है भाई, ये मशीन पैसे तो निकालेगी, सब कुछ है, कार्ड भी है, पैसे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन निकालेगी कैसे, क्या प्रोसीजर है? अब आप देखें ATM मशीन हम जाएँ तो लिखा हुआ आता है प्लीज़ इंसर्ट द कार्ड हेयर, और वो जो जहाँ पर कार्ड हमें इंसर्ट करना होता है समटाइम्स उसकी लाइट भी ऑन ऑफ हो रही होती है ताकि यूज़र को अच्छे से समझ में आए। तो ये हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग एक मशीन को यूज़र फ्रेंडली बना रहे होते हैं ताकि यूज़र को ईजिली समझ में आ जाए। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ATM मशीन में नहीं लिखा होगा कि हमें कार्ड इंसर्ट करना है और सिंपली बस कहा होगा कि ओके डू द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर टू गेट द मनी आउट, सो हम क्या करेंगे, समझ में नहीं आएगा। जो फर्स्ट टाइम जाएगा तो उसको तो नहीं पता होगा, तो वो क्या करेगा, वो फिर कहेगा कि अच्छा यार मैं तो बिल्कुल नहीं पता मुझे, आई एम लाइक दिस एंड दैट, तो फिर वो किसी से और से पूछेगा। सो दिस वॉज लाइक कि मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। सो to make something user friendly, the message it is saying it should be displayed. So this scene command should consist of two steps. The first step is the display of the message that will say that what this input, what kind of input is required, ठीक है, and the second step is taking the input,
यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या था, एक सी आउट की स्टेटमेंट जो कि एक मैसेज होगा, एक स्टेटमेंट डिस्प्ले होगी जिसमें बताया हुआ होगा कि किस तरह का इनपुट जो होगा वो रिक्वायर्ड है, ठीक है, और फिर उसका इनपुट लेना. सो दिस इज, ऑल्दो दिस इज नॉट कंपल्सरी, बट दिस शुड बी द गुड प्रैक्टिस. दिस शुड बी एन यूजुअल प्रैक्टिस ऑफ अ प्रोग्रामर कि पहले एक स्टेटमेंट आए जिसमें बताया हुआ हो कि किस तरह का इनपुट रिक्वायर्ड है और फिर इनपुट लिया गया हो, ठीक है. सो दिस इज वाई वी हैव टू मेक द प्रोग्राम यूजर फ्रेंडली, ठीक है. ओके, सो नाउ देयर इज अनदर थिंग कि अगर हम चाहते हैं कि हम जो है वो एक ही इंस्ट्रक्शन में दोनों इनपुट्स ले लें, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग cn and then separated by these extraction operators again and then with, we can also do this, ठीक है. हम लोग ये भी कर सकते हैं, इसको हटा दें, ठीक है, इसको हम लोग हटा दें, एंड हम लोग एक ही इंस्ट्रक्शन में दो चीज़ें, हम लोग दो इनपुट्स ले सकते हैं, separated by these extraction operators, cn extraction operators length and then again extract width, ठीक है. सो यहाँ पर हम लोग ये लिख देते हैं लेंथ एंड width of a rectangle. Again I run it. So now enter the length and width of rectangle. I will type 6.8 again and then 6 and then run it. सही है. तो ये दो इनपुट्स हमने एक साथ ले रहा है, सही है. दोबारा से इसको रन करके दिखाती हूँ. So now after first it is displaying the statement enter the length and the width of the rectangle, and it is again now waiting. After this extraction operator, it will wait for the input and will be inserted just in the variable just after this extraction operator. So I will type 8, let's say, and then again it is waiting. So this extraction operators mean again to wait something and take something from the user and put it in the memory location over here. So it's now again waiting. So I will type this and then answer, ठीक है. तो इस तरह से ये हमारे पास होता है, सही. अब अगेन रिपीट, ये अगर हमें एक ही इंस्ट्रक्शन में डिफरेंट वेरिएबल को डिफाइन करना हो, सो दोज वेरिएबल्स विल बी सेपरेटेड लाइक दिस विद द कॉमा. बट इफ यू वांट टू टेक मल्टीपल इनपुट्स इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन, वी हैव टू सेपरेट देम विद दिस एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है. ये cn के बाद है और ये डिफाइन होने के बाद है. सो डोंट कंफ्यूज these two things. Okay, so let's get back to the this part. So this was it all I was doing. I have explained it, and then I have also explained all of these things, and then entering the multiple values. Yes, I have also explained it. ठीक है. Okay, one more thing is left. Okay, so यहाँ पर अगर हमारे पास ये जो हम लोगों ने आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले करवाया है, जो हम लोगों ने आउटपुट डिस्प्ले करवाया है, वो हम लोगों ने सिंपल जो हमारे पास वेरिएबल थी उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवा दी है. बट हमें पता है कि फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क समवन अ क्वेश्चन कि व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, एंड समवन सेज दैट अली, so that means he has just given the single word one word answer, that is Ali, the actual answer that was required. But if someone says कि हम थोड़ा सा एक अच्छे तरीके से बताए कि ओके माई नेम इज़ अली, सो दैट मीन्स व्हाट कि उसने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के साथ बताया है कि माई नेम इज़ अली. सो इसी तरह से ऑल्दो दोनों आंसर सही हैं, जो हमें एक्चुअल चीज़ रिक्वायर्ड थी वो नाम ही रिक्वायर्ड था, उसने बता दिया. लेकिन दो तरीके थे बताने के. एक तरीका था कि सिंपल जो एक्चुअल आंसर है वही दें, जैसे हम लोगों ने यहाँ किया है, सी आउट एरिया बता दिया. लेकिन एक और तरीका वो क्या है, वो ये है कि हम लोग एक डिस्क्रिप्शन के साथ बताएं कि okay, the area of a rectangle is this. So what I can do is I can have multiple things for multiple outputs in a single instruction. We can write this: the area of the rectangle is, ठीक है. अब ये क्या कर रहा है, अब ये हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन के साथ आंसर देगा. द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, जो भी एरिया की वैल्यू होगी वो यहाँ पर. अब नाउ यू कैन सी एरिया यहाँ भी लिखा हुआ है और एरिया यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन जब ये डिस्प्ले करेगा तो इस एरिया को एज इट इज़ एरिया ही लिख देगा और इस एरिया की जगह जो वैल्यू एक्चुअली एरिया की आई होगी वो लिखेगा. वो क्यों? क्योंकि ये एरिया जो है जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो इन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है. एंड एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर दैट वट एवर रिजाइड्स इनसाइड दीज इन्वर्टेड कॉमास विल नॉट बी प्रोसेस्ड, विल बी डिस्प्लेड
एंड विल बी डिस्प्लेड एज इट इज़। ठीक है, जो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ होगा उसको कंपाइलर जो होगा वो कंपाइल नहीं करेगा, प्रोसेस नहीं करेगा, बल्कि एज इट इज़ लिख देगा। ठीक है, और जो इन्वर्टेड कॉमास के बगैर होगा उसको वो कंपाइल करेगा, यानी कि प्रोसेस करेगा कि अच्छा इसकी वैल्यू है क्या। सही है। सो इफ आई सिंपली run it, so now you can say it is waiting for to input. So now it is displayed as the area of rectangle is 22.4. ठीक है, अब ये स्टेटमेंट के साथ एरिया एरिया और दिस। ठीक है, so yes, so now you are giving multiple so now I have explained taking multiple inputs in a single instruction and giving out multiple outputs in a single instruction. So multiple outputs single instruction में अगर लिखने हो तो will be separated by these। ठीक है, ये देखें, ये एक आउटपुट ऐसा है जो कि एक स्टेटमेंट है, फिर ये एक आउटपुट दूसरा आउटपुट है वो एक वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल है। तो हम लोगों ने इसको सेपरेट कैसे किया है, इन इंसर्शन ऑपरेटर्स है जो कि सी आउट के होते हैं, और इनको कैसे सेपरेट किया है जो कि सी आउट के ऑपरेटर्स होते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स इनसे और इसके इनको कॉमा से। तो दिस इज द डिफरेंस, यू हैव टू keep this thing in mind. Okay, so this was the thing I was explaining. This was all about cin command. Let's talk about reading strings. Basically we have different types of data, right? Those three different types of data are, we have integer, we have float, we have string, we have character, we have bool, and we have these kind of data types. ठीक है, अब अगर हमें पास जब स्ट्रिंग को रीड करना हो तो हमारे पास हम लोग कमांड कैसे लिखते हैं, सी इन नेम। इसके मैं एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जांपल let me just remove this. For example, if I want to have if I want to get the name of the user, so what I will do is I will just name, हमें पता है name जो होता है वो group of characters पे consist करता है, so I will define the variable of type string। ठीक है, तो string लूँगी और मैं यहाँ पर for example xyz एक variable का नाम है। ठीक है, and then उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, and then I will say this, I will just write that it is the prompting statement. Okay, I forgot to tell you one thing, that this statement before cin, which is used to help the user at what he or she has to type, is actually called the prompting statement। ठीक है, एक सी आउट की वो स्टेटमेंट जो कि सी इन से पहले लिखी जाती है, जिसमें ये मैसेज बताया हुआ होता है कि यूज़र से क्या चीज़ इनपुट एज एन इनपुट चाहिए, वो स्टेटमेंट सी आउट की प्रॉम्प्टिंग कहलाती है। प्रॉम्प्टिंग मीन्स टू डायरेक्ट समवन टू सम डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि कुछ किसी को रास्ता दिखाना, कुछ बताना कि अच्छा आपको ये करना है। सो दिस सी आउट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज प्रॉम्प्टिंग स्टेटमेंट। ओके, सो आई विल राइट हियर दैट एंटर योर नेम। ठीक है, सो एंटर, ओके, एंड देन सी एन XYZ। ठीक है, यानी कि यूज़र जो भी नेम टाइप करेगा वो वेरिएबल XYZ पे सेव हो जाएगा, एंड देन आई जस्ट वांट टू डिस्प्ले इट। द नेम ऑफ द यूज़र इज व्हाट, XYZ। ठीक है, XYZ में वो सेव हुआ होगा और यहाँ पर वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, okay, so now you can see, so now it is saying enter your name. So I have typed, let's say for example if I type my name, ठीक है, I have typed my whole name and full name, then enter. So now what is displayed, okay, the name of the user is this, where is this second name, ये second name जो है वो कहाँ गया। सो अब देखिए डिस्प्ले क्या हुआ, मैंने टाइप क्या किया था, पूरा अपना नाम, लेकिन टाइप आंसर में क्या आया, सिर्फ फर्स्ट नेम। अब मुझे तो पूरा नाम चाहिए, ये क्या मतलब, इसमें हुआ क्या। सो बेसिकली होता क्या है, ये हुआ क्यों और होता क्या है ये बताती हूँ।
जब हम लोग स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं तो बेसिकली हमारे पास स्ट्रिंग इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, बट द स्पेस इन बिटवीन द कैरेक्टर्स, द स्पेस बार, ये जो स्पेस होती है, दिस स्पेस इज नॉट काउंटेड इन द कैरेक्टर, ठीक है, ये जो स्पेस होती है ये कैरेक्टर के काउंट पे नहीं आता, ठीक है। सो दैट इज़ वाई इस प्रोग्राम में हुआ क्या कि जब मैंने यहाँ अपना फर्स्ट नेम लिखा तो फर्स्ट नेम मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो गया, लेकिन जब यहाँ पर स्पेस आई वो इनपुट लेता गया, जब इनपुट लेता गया यहाँ तक, फिर जब वो स्पेस आई तो वो रुक गया, उसको समझ में आ गया कि ओके दिस वाज द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, तो उसने सिर्फ यहाँ तक सेव कर लिया और इसको डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है, इसको उसने डिस्कार्ड कर दिया। तो स्पेस बार तक उसने स्ट्रिंग को इनपुट करवाता गया, जैसे ही वो स्पेस आई तो it felt like it was the end of the string, and then it just got the things already things before this space bar got saved in the memory location, and things after the space bar got discarded, ठीक है। तो इस तरह से मेरा फर्स्ट नेम जो था वो डिस्प्ले हो गया, लेकिन बाकी दूसरा जो नाम था वो क्या हुआ, उसका वो इग्नोर हो गया, डिस्कार्ड हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिंग की जब हम लोग बात करते हैं और हम लोग जब cin की कमांड यूज़ करते हैं और स्ट्रिंग को लेने में, तो वो स्ट्रिंग जो cin की कमांड होती है वो स्पेस बार को कंसिडर नहीं करती। इस तरह से जैसे स्पेस बार को कंसिडर नहीं करती, वैसे ही टैब वगैरह की जो कमांड्स होती हैं उनको भी वो कंसिडर नहीं करती, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मुझे तो चाहिए यूज़र का पूरा नाम, फॉर एग्जांपल एक क्लास है, स्टूडेंट के नेम्स जो हैं वो मैं cin करवा रही हूँ, और एक क्लास में 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ही नाम के जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब दोनों ने अपने अपने फर्स्ट नाम जो थे वो टाइप कर दिए, तो मुझे कन्फ्यूजन हो जाएगी, एज अ बीइंग अ टीचर मुझे डिसकन्फ्यूजन हो जाएगी, अच्छा ये स्टूडेंट कौन सा, दूसरा स्टूडेंट कौन सा था। सो दैट मीन्स आई वॉन्ट टू टेक द full name of the user as an input. So what do I have to do? I will change and I will somehow change this cin command. So जब ये cin command में xyz करके input करूँगी तो वो सिर्फ और सिर्फ string group of character को लेगा without space bar, ठीक है, before space bar, सही है, जैसे group of character को ले लिया before space bar। लेकिन if I change a little bit of this cin command like this, so basically there is another thing that is called get line, ठीक है। get line basically takes the whole line, पूरी एक लाइन, जब तक यूज़र एंटर नहीं टाइप कर लेता तब तक वो पूरी लाइन जो होगी वो एज ए इनपुट लेगा, यानी कि उसमें स्पेस बार जो होगी वो आ जाएगी, ठीक है। जितनी यूज़र जब तक एंटर नहीं टाइप कर लेगा तब तक वो पूरी जितनी भी चीज़ें होंगी उसको एज अ स्ट्रिंग में कंसिडर करेगा, ठीक है। सो इसका सिंटेक्स क्या है, गेट लाइन लिखने के बाद ब्रैकेट cin कॉमा उस वेरिएबल का नाम जिसमें हम लोग स्टोर करवाना चाहते हैं xyz, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मैंने पहले क्या होगा कि एंटर योर नेम डिस्प्ले होगी स्टेटमेंट, एंड देन cin कमांड xyz, एंड देन अगेन दोबारा से वो इनपुट लेगा, यानी कि दो बार इनपुट लेगा, ठीक है। सो आई विल जस्ट चेंज द वेरिएबल, 2 वेरिएबल ले लेती हूँ, abc, यहाँ पर abc, ठीक है। endl cout, ठीक है। सो लेट्स जस्ट रन दिस। Okay, so this is the first statement, enter your name. So I have entered the name. Okay, so अब ये देखें, अब हमारे अभी भी डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं आया। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि ओके what it should do is it should do it like enter your name, I should have entered the name, एंड देन गेट लाइन, एंड अगेन दो इनपुट लेने चाहिए थे, एक इसमें और एक इसमें, लेकिन इसे एक ही इनपुट लिया और क्या किया कि
द नेम ऑफ द यूज़र इज दिस एंड द नेम ऑफ द यूज़र इज दिस. सो इसने डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं दिया. अब इसने क्यों नहीं दिया, इसको ज़रा समझते हैं. फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया कि जो स्टेटमेंट हम लोगों ने यहाँ पर सी एन डाली, सी एन एक्स वाई जेड, ये वो सी एन की कमांड थी जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर वो लेती थी जो बिफोर स्पेस बार होते थे, और आफ्टर स्पेस बार वाले को वो एक मेमोरी लोकेशन में काउंट नहीं करती थी, यानी कि इग्नोर कर देती थी. तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने पहले ये फर्स्ट नेम डाला एंड देन इसने स्पेस जब डाली. जब स्पेस डाली तो इसने ये फर्स्ट नेम जो था वो मेमोरी लोकेशन एक्स वाई जेड में स्टोर करवा दिया. एंड देन जब स्पेस आया तो स्पेस के बाद जो इनपुट मैंने डाला तो इसने इस इनपुट को आफ्टर द स्पेस इस इनपुट को दूसरा इनपुट कंसिडर कर लिया. तो यानी कि फिर इसने ये वाली कमांड जो थी, वो ये वाली जो इंस्ट्रक्शन थी उसको इग्नोर कर दिया, बिकॉज ऑलरेडी इस इंस्ट्रक्शन के अंदर उसने इस वाली वैल्यू को इंक्लूड कर लिया था. यानी कि इस ABC के अंदर उसने सेकेंड नेम को, ये जो अकरम नाम है, इसको रख लिया था. ठीक है. तो अब उसने फिर इसलिए ये वाली जो इंस्ट्रक्शन थी इसको इग्नोर कर दिया और डायरेक्टली हमें आंसर दे दिया. सही है. टू करेक्ट दिस इशू, ये जो एक हमारा लॉजिकल एक एरर आ रहा है, इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस गेट लाइन वाली को पहले लिख लेंगे ताकि वो स्ट्रिंग जो हमारे पास स्पेस के बाद वाली चीज़ें हैं उसको भी कंसिडर करे. ठीक है. और फिर इसको हम रन करेंगे. सही. सो टाइप नेमिंग एज, नाउ इट इज अगेन वेटिंग फॉर अनदर इनपुट. अब ये देखें सही हो गया. क्यों? क्योंकि इसने इस वाली इंस्ट्रक्शन ने, गेट लाइन वाली इंस्ट्रक्शन ने पूरी लाइन को एज एन इनपुट कंसिडर किया, एक इनपुट कंसिडर किया. उसने क्या किया था, पूरी लाइन को, क्योंकि स्पेस से पहले जितना भी चीज़ें थी उसको एज एन इनपुट एक कंसिडर किया, और स्पेस के बाद क्योंकि दो इनपुट थे तो स्पेस के बाद चीज़ आई उसको दूसरे इनपुट में डाल दिया. तो अब इसमें ये नहीं हुआ. इसमें क्या हुआ, पूरी की पूरी चीज़ फर्स्ट इनपुट में कंसिडर हो गई. नाउ इट इज अगेन आस्किंग फॉर अनदर इनपुट दैट इज सी एन ओनली. सो नाउ अगर मैं यहाँ पर स्पेस के बाद कोई इनपुट दूंगी भी तो वो इग्नोर हो जाएगा. सही है. लेकिन फिर भी मैं देख देती हूँ. तो नाउ यू कैन सी द नेम ऑफ द यूज़र इज दिस. अब पहले क्या डिस्प्ले हो रहा था, एक्स वाई जेड. एक्स वाई जेड में क्या था, सिर्फ फर्स्ट नेम आया था क्योंकि वो सी एन की कमांड के बाद आया था. सेकेंड ABC में क्या था, गेट लाइन सी एन की कमांड में आया था. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गेट लाइन एंड सी एन. ओके. So this was so this is the way when you want to take space bar as an input. If you want to take space bar as an input in string, then you have to type get line. Okay, instead of typing cn only, you have to type get line cn. ठीक है. दोबारा से रिपीट कर देती हूँ. अगर हमें स्पेस बार को भी एज एन इनपुट ऑफ स्ट्रिंग कंसिडर करवाना है तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग cn ओनली वी विल हैव टू यूज़ गेट लाइन cn. ठीक है. और अगर हमें स्पेस बार कंसिडर नहीं करवाना स्ट्रिंग में तो हम लोग सिंपली cn लिखेंगे. अगर हमें स्पेस बार कंसिडर करवाना है तो हम लोग गेट लाइन cn लिखेंगे. ठीक है. सो दिस इज द थिंग. ओके. So this is again saying us the same things. Okay, now there's another thing. अब हमें लोगों ने बता दिया था कि जो स्पेस बार होता है वो कैरेक्टर में नहीं आता. फॉर एग्जांपल अगर हमारे स्ट्रिंग इनपुट ना हो, हमारे पास कैरेक्टर इनपुट हो और हमें स्पेस बार एज एन इनपुट चाहिए हो, एज एन इनपुट ऑफ कैरेक्टर चाहिए हो, कैरेक्टर डेटा टाइप चाहिए हो, तो हम उसके लिए क्या करेंगे. उसके लिए हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल करवाती हूँ, डिफाइन कैरेक्टर नेम, राइट, लेट्स से. ठीक है. तो अभी क्या होगा, यहाँ पर स्टेप में एक वेरिएबल नेम के नाम से बन जाएगा, मेमोरी लोकेशन रिजर्व कर लेगा, एंड देन इट्स सेइंग सी आउट enter a character. Then
एंड cin नेम, ठीक है, नेम मेरे को सेव करना है, सही. So I also want to display, so I will display, instead of displaying xyz I will display name, and instead of displaying abc I will display name again. That's it. Okay, so basically now what will happen, अब अगर for example मैं इसको run करूँ, I think something is missing. Bracket. Okay. Okay, now they are saying enter a character. अब फॉर एग्जाम्पल मेरा जो कैरेक्टर जो मुझे टाइप करना है, जो मुझे इनपुट करवाना है, जो मुझे नेम में स्टोर करवाना है, वो एक स्पेस बार है. आई एम टाइपिंग स्पेस बार. सो स्पेस बार से क्या हुआ कि अभी ये स्पेस बार को इनपुट ले ही नहीं रहा, ये स्टिल वेट कर रहा है. हालांकि मैंने अपना इनपुट डिजायर्ड इनपुट दे दिया है जो मुझे चाहिए था, लेकिन इसने तो सेव ही नहीं किया. इट इज स्टिल नाउ वेटिंग फॉर द इनपुट. दैट मीन्स व्हाट, इट इज नॉट टेकिंग द स्पेस बार एज एन इनपुट. इट इज जस्ट स्टिल वेटिंग फॉर द एंटर भी टाइप कर लिए, ये स्टिल वेट कर रहा है इनपुट के लिए. सो इट जस्ट रिक्वायर अनदर थिंग. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर डॉट डालती हूँ तो अब इसने डॉट को बता दिया कि द नेम ऑफ द यूजर इज डॉट, द नेम ऑफ द यूजर इज डॉट. ठीक है, तो अब इसने मतलब यानी कि स्पेस बार को कंसिडर नहीं कर रहा था. ठीक है, तो स्पेस बार को कंसिडर करवाने के लिए वी हैव दिस थिंग दैट इज कॉल्ड cn डॉट गेट कैरेक्टर. ठीक है, हम इसको यूज करेंगे. सो gonna use this. Instead of using cin only, I will use cin dot get, and in bracket I will use the variable name. ठीक है, cn dot the cn dot and bracket में नेम क्या था, नेम एक वेरिएबल था जिसकी टाइप क्या थी, कैरेक्टर थी. ठीक है, नाउ आई एम सेइंग दिस रनिंग. सो नाउ एंटर अ कैरेक्टर. सो कैरेक्टर की जगह मैं स्पेस टाइप करती हूँ एंड एंटर. सो नाउ इट हैज टेकन द नेम ऑफ द यूजर इज स्पेस, द नेम ऑफ यूजर इज दिस. ठीक है, दिस इज हाउ यू विल गिव स्पेस बार एज अ इनपुट इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर यूजिंग दीज स्टेटमेंट्स. cn डॉट गेट, और अगर स्ट्रिंग में देना हो तो फिर गेट लाइन ब्रैकेट cn कॉमा वेरिएबल नेम, और यहाँ पर cn डॉट गेट ब्रैकेट वेरिएबल नेम. ठीक है, so these are the another examples. So now let's talk about mathematical expressions. So this mathematical expressions are similarly same. Let me just run it over here. Okay, so C++ allows you to construct complex mathematical operations using multiple arithmetic operations like this. Sum is assigned the value 21 plus 3. Now it has done this, and then these are some mathematical operations which were already seen. One is something different and new to us, that is size of. ठीक है, साइज ऑफ क्या कहते हैं, साइज ऑफ एक कमांड है जो कि हमें जो भी डेटा टाइप होगी उसके बाद जो लिखी हुई आएगी उसका हमें साइज बताएगा. ये हमने आई थिंक शुरू की क्लासेस में आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो है वो डेटा टाइप के अगर हमें लोकेशन के वो कितने बाइट्स लेती है, कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करती है कोई एक पर्टिकुलर डेटा टाइप, अगर वो हमें पता करना हो तो देयर इज़ अ कमांड दैट इज़ कॉल्ड साइज ऑफ. ठीक है, अगर मैं इसको यूज़ करके भी दिखा दूंगी. अनदर थिंग इज रिजल्ट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी. सो अभी हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास जो अभी जो एक्सप्रेशंस हैं वो यहाँ पर सिंपल है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर है a प्लस बी प्लस सी. नाउ व्हाट इफ अगर हमारे पास कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाए विच हैज़ ऑल द थिंग्स लाइक a प्लस बी हो, माइनस बी हो, डिवाइड भी हो, माइनस डिवाइड भी हो, मल्टीप्लाई का साइन भी हो, तब भी किस तरह से काम करता है, यानी कि कौन सा काम पहले करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इफ आई यूज दिस, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब देखें कि a प्लस बी प्लस सी की बजाय a प्लस बी माइनस सी लिखा हुआ हो, तो व्हाट डू यू थिंक कि पहले ये क्या करेगा, पहले ये a प्लस बी का जो करेगा और फिर उसका जो आंसर आएगा उसमें से c को माइनस कर देगा, या फिर पहले वो b माइनस सी करेगा और फिर जो आंसर आएगा उसको प्लस कर देगा a के साथ. तो ये क्या करेगा. सो इट शुड बी फिगर्ड आउट, राइट. सो बेसिकली C++ ऑल्सो जब हम नॉर्मल लाइफ में हम लोग इस तरह के काम करते हैं
तो हम लोग डिमास रूल यूज़ करते हैं, डिमास बॉडमास या फिर डिमास रूल यूज़ करते हैं. दैट मीन्स डिविजन फर्स्ट, देन मल्टीप्लिकेशन, देन addition, and then subtraction, right? So similarly C++ also follows the same thing, like C++ uses Demas approach and calculations. However, it is better to use bracket while doing the complex calculations. But जो Demas rule भी होता है वो normally इतनी आसानी से उस तरह से यूज़ नहीं होता जिस तरह हम लोग समझ रहे होते हैं कि हम लोग नॉर्मल लाइफ में जो Demas रूल यूज़ करते हैं उस तरह से भी C++ में यूज़ नहीं होता, थोड़ा सा उसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी है. सो to avoid any kind of confusion, it's better to use the brackets, कि हम लोग ब्रैकेट्स यूज़ कर लें. तो अब वो C++ क्या करेगा, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेगा और फिर जो होगा वो बाकी एक्सप्रेशन को यूज़ करेगा. सो अगर हमें फॉर एग्जांपल a+b पहले काम करवाना है और फिर जो आंसर है वो c में माइनस करवाना है, यहाँ पर लेट से माइनस का साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट डाल देंगे ताकि वो ये वाला काम पहले करे और फिर ये वाला काम करे. और अगर हमें ये वाला काम पहले करवाना है तो हम यहाँ पर ब्रैकेट डाल देंगे, ठीक है, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए. ठीक है. Similarly we have an example that like this, written something like this, 12 plus 6 divided by 3. So now it can have two possible answers. Two possible answers कौन कौन से हो सकते हैं कि पहले वो 6 divided by 3 करे. So 6 divided by 3 is 3 1 3, 3 2 6, that means 2 plus 12, that is 4. Another another thing situation is कि हमारे पास ये पहले जो है वो 12 plus 6 करे, ठीक है. 12 प्लस 6 इज 18 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि आंसर क्या होगा, 6 आएगा. तो वी कैन हैव टू. अक्सर हम लोगों ने इस तरह के पिक्चर भी देखी होंगी, इसमें दो कैलकुलेटर्स जो होंगे वो एक ही एक्सप्रेशन का डिफरेंट आंसर दे रहे होते हैं. तो क्यों, क्योंकि वो अलग तरीके से उनको प्रोग्राम किया हुआ होता है. तो टू अवॉइड द कन्फ्यूजन इट्स बेटर टू यूज़ दीज काइंड ऑफ ब्रैकेट्स, ताकि हमें एक सही से नज़र आए, ताकि हमें पता चले कि अच्छा पहले ये काम करना है फिर ये काम करना है, ठीक है. सो इट्स बेटर to use brackets, सही है. Otherwise it's kind of difficult to understand the approach C++ uses to do the complex calculations, right? So after this we have exponent operator of functions. जैसे हम लोगों ने एक्सपोनेंट जो हम लोग लिखते हैं C++ में वो हम लोग नॉर्मली फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 7 एक्सपोनेंट 7 की पावर 12 है, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 अप टिल 12. 7 इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय itself 12 times. तो अगर हमें ये वाली चीज़ इस तरह से लिखनी हो C++ में तो हम लोग कैसे लिखेंगे, there are many inbuilt exponent or mathematical functions present in C++. So some of them are POW. POW is used for to give some variable a power. That means POW bracket 7, 12, यानी कि 7 पावर 12, जो भी आंसर होगा वो A में स्टोर हो जाएगा, ठीक है. तो ये आसान होता है कि अगर हम बार बार हम लोग 7 12 टाइम्स लिखना हमारे लिए मुश्किल है तो हम लोग सिंपली इंस्ट्रक्शन में ये लिख देंगे. इसी तरह से अगर हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना हो तो स्क्वायर रूट दिस 16, यानी कि 16 का स्क्वायर रूट निकाल देगा. 125 का ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकाल देगा, ठीक है. बट टू यूज़ द इनबिल्ट मैथमेटिकल फंक्शंस वी हैव टू इंसर्ट एक्स्ट्रा लाइब्रेरी which has all the mathematical functions stored in it, ठीक है. So that library is called as math.h, ठीक है. इसको मैं करके दिखा देती हूँ, हमें ये एक्स्ट्रा इनबिल्ट करवानी होती है, मैं इसको करके दिखा देती हूँ. For example, if I want to do something like a is assigned the value of POW function and then 7, 12, ठीक है. तो ये क्या करेगा, 7 की पावर 12 करके दिखाएगा हमें. एंड देन सी आउट जो भी इसका आंसर होगा वो A डिस्प्ले कर देगा, ठीक है. A को हम लोग जो है वो इनिशियलाइज करवा देते हैं इन A, सही है. एंड देन when we run it, so it is now giving me error in this line. Although दिखने में कोई एरर नहीं है, सब कुछ सही है, लेकिन स्टिल ये एरर दे रहा है. क्यों एरर दे रहा है, इसको एरर पढ़ते हैं. एरर POW used was not declared in the scope, यानी कि ये POW को रिकग्नाइज नहीं कर रहा, ठीक है. तो क्यों, क्योंकि POW इसको नहीं पता POW का मतलब क्या है.
So to get it recognized POW, we have to add a library which has all the mathematical functions stored. तो ये तो वो library हम लोग यहाँ पर add करेंगे, include math.h. ठीक है, हम लोग इस लाइब्रेरी को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवा दिया. Now again run this. Now it will give me some anything like okay. अच्छा, ये थोड़ा सा एक एरर आ गया, हम इसको रिमूव कर देंगे इस चीज़ों को. Oh yes, now there's an error, there's a problem. What that problem is कि हम लोगों ने A is that should not be actually the error. Oh yes, so actually यहाँ पे अभी ये देखें, इसको मैं जब रन करूँ, let's see game. अभी देखें यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल अजीब सा आंसर दिया है जो हमारा एक्चुअल आंसर नहीं था. ऑफ कोर्स हमें पता है कि एनीथिंग 7 जब हम 7 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे 7 से ही, तो वो इस तरह का माइनस पे आंसर नहीं आ सकता. ऑफ कोर्स इस तरह को एक बड़ा सा नंबर ज़रूर आएगा, लेकिन कुछ माइनस पे नहीं आएगा. तो डैट मीन्स जो हमारे आंसर आया है वो सही नहीं आया. अब वो क्यों सही नहीं आया? वो इसलिए सही नहीं आया क्योंकि जो इंटीजर था वो हमारे पास डाटा टाइप, ऑल्दो इंटीजर ही आंसर आएगा, लेकिन इंटीजर डाटा टाइप इज हैविंग लेस स्पेस बट द आंसर वाज लार्जर. ठीक है, यानी कि जो आंसर था वो बड़ा था और इंटीजर की जो स्पेस थी उसके लिए वो कम पड़ गई. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर की बजाय हमें पता है कि इंटीजर की 3 टाइप्स होती हैं. एक शॉर्ट होता है और एक इंट होता है और एक लॉन्ग होता है. शॉर्ट में हमारे पास शॉर्ट के लिए छोटी स्पेस, short is for smaller space, int carries a larger space, and long carry larger than largest space. So for that I will use long, and now run it again. It is again giving me some things, some problem. Let's just introduce it as double maybe. Okay, so yes, so the number basically was really too large, so even in the long it was not fit, so that's why I have used double. तो अब ये डबल में भी फिट नहीं आ रहा, तो दैट्स वाई इसने वैल्यू इस तरह की दे दिया. हम कोई छोटा नंबर यूज़ कर लेते हैं, हम जो है वो 2 यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं ताकि यहाँ पर इतना बड़ा नंबर ना आए. ठीक है, और वो 2 जो होगा वो आई थिंक इंट में भी स्टोर हो जाएगा. लेट्स सी. तो यस 4096 ये इंट में भी स्टोर हो गया आराम से. सही है. सो बेसिकली हम अब अगर इस तरह का कुछ समटाइम्स अजीब सा मसला है तो इस तरह का भी हो सकता है कि आपका जो वेरिएबल आपने डिफाइन किया वो डेटा टाइप, वो उसकी जो स्पेस होगी वो इनफ नहीं होगी, जो आंसर होगा आपका आंसर बहुत बड़ा भी हो सकता है. जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि 7 power 12 आंसर वॉज रियली टू बिग टू बी स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये इसको लिख सकते हैं. Okay, so this was it. This was about today's class. In the next topic we are going to talk about we're going to talk about formatting of different type of formatting of our output window. Then Allah Hafiz.